Amen. Praise the Lord. Greetings to everyone. जो भी हमसे जुड़ रहे हैं सभी को मैं मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ. Hallelujah. I want to thank HE Foundation for giving me this opportunity. जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है उनके पेज पर आकर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए. And I want to specially thank brother Marcus for doing a wonderful job. जो बहुत ही अच्छा सेवकाई कर रहे हैं, अलग अलग परमेश्वर के दासों को लेके आकर. he's been getting a lot of people of God from across and being a blessing to the body of Christ. God bless you. Hallelujah. God is so good. परमेश्वर बहुत ही भला है. और जो भी लोग जुड़ रहे हैं मैं आप सभी से विनंती करूंगा कि अगर आप इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, if you can share this post as much as you can, so people can be blessed. Hallelujah. आइए हम दुआ के साथ शुरू करेंगे. Let us pray before we begin. Father, in Jesus' name, we just want to thank you for this daily bread service. Oh Lord, we pray that you would bless HE Foundation. And Lord, you would bless Brother Marcus and his family who is doing a wonderful job. And Lord, we just want to thank you for this ministry, that through this ministry many people will be blessed. And even especially this day, even as we minister the word of God, we pray, Holy Spirit, you will speak to your people in the name of Jesus. And also from the next service, 8 to 9 p.m., you would minister, touch people, their lives would never be the same. In the name of Jesus, we cancel every plan of the enemy. And Lord, we say yes to your plan. Let your plan be established. आपकी योजना परमेश्वर पूरी हो, ऐसा होने दे. आपके लोग जो देख रहे हैं उन सभी को आज परमेश्वर आपके वचनों से तृप्त कर और आशीषित कर. तेरे नाम की महिमा होने दे. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अगर आप जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से. मैं विनंती करूंगा कि यदि आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं, हालेलुया, यू कैन शेयर दिस ब्रॉडकास्ट एंड बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. और आप दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटकर आशीष का कारण बन सकते हैं. हालेलुया. आज मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं. I'm going to talk to you about how to enjoy your blessing. Hallelujah. How to enjoy your breakthrough, or how to enjoy, the blessing of the Lord. Hallelujah. तो मैं इसके विषय में आज आपसे बातें करने वाला हूँ. यदि हो सके तो आप इसे लिख सकते हैं. अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं. You can listen to this word and be blessed. Amen. तो हमारे पास शायद 50 मिनट है अब, और क्योंकि उसके बाद दूसरा भी सभा है. So we are going to bring the word of God to you. Amen. So I'm going to talk to you about few things that is needed in experiencing the blessing of the Lord. Hallelujah. कोई ऐसा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी जरूरत है हमें आशीष अनुभव करने के लिए. हालेलुया. और सबसे उत्तम चीज, सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का ब्लेसिंग अनुभव करने के लिए, वो है ओबीडियंस, आज्ञा पालन. हालेलुया. ये पूरे 2 हफ्ते से मैं ओबीडियंस के बारे में बता रहा हूँ, ओबीडियंस के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ. एंड आई वांट टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ओबीडियंस. आमीन. तो आपको पता चल सकता है कि हम कितना आज परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी हैं. Amen. So I'm going to tell you what is this obedience, how to obey the Lord, how to come in that place of obedience, so you will know how much are we really obeying the Lord. Hallelujah. Amen. Obedience, सबसे पहले obedience क्या होता है? Obedience is keeping yourself under an authority. Amen. Keeping yourself or submitting yourself under someone who is authoritative, or someone who is the ultimate powerful person. For us, there is only one person who is ultimately powerful. Bible वो व्यक्ति के बारे में गवाही देता है that person is supreme above heaven and the earth, that is God Almighty. Hallelujah. हमारा परमेश्वर जो है ना, वो स्वर्ग और पृथ्वी पर, amen, सामर्थी है. He is supreme. Hallelujah. He is supreme, यानी उस जैसा कोई नहीं. Hallelujah. तो हमारे लिए आज्ञापालन यानी submitting under this supreme God, or submitting to this supreme one.
हालेलुया। पुराने करार में, जूना नियम में, जब लोगों को परमेश्वर का ब्लेसिंग चाहिए था, लोगों को परमेश्वर का जब इंटरवेंशन चाहिए था, तो वो क्या करते थे पता है? वो सैक्रिफाइस करते थे, सैक्रिफाइस, बलिदान करते थे। हालेलुया। क्या चीज की बलिदान करते थे? बैल का बलिदान, गोट्स का बलिदान, रैम का बलिदान, और बहुत सारे चीजों का बलिदान करते थे। और उन्हें लगता था कि यदि हम बलिदान करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर का नजर फिर एक बार हमारे पर रहेगा, वो हमें क्षमा करेगा और हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। लेकिन जब भविष्यवक्ता शमूएल नाम का भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर ने खड़ा किया, तब शमूएल ने एक अद्भुत चीज लोगों से कहा। वो 1 Samuel 15 वर्सेस 22 और 23 में लिखा है। हालेलुया। सैमुअल कहता है, सैमुअल सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर बलिदान में प्रसन्न है? हालेलुया। डू यू रियली थिंक दैट गॉड इज प्लीज्ड विद सैक्रिफाइसेस? देयर इज समथिंग दैट गॉड डिजायर्स मोर देन सैक्रिफाइस। ये बलिदान से भी बढ़कर परमेश्वर कुछ ऐसा चीज लोगों से अपेक्षा करता है, और वो है आज्ञा पालन, वो है ओबीडियंस। Hallelujah. Unless you don't obey the Lord, unless you don't obey the word of the Lord, you cannot please God and God cannot bless you. Hallelujah. आज बहुत से बार हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर का नाम पता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम कमी देखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में हम लैक को देखते हैं। Still we are falling short of the blessing of God and we wonder why this is happening. मेरे हृदय को I feel so broken, at times when I cry in front of the Lord, because so many people write to me. बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, कहते हैं कि ब्रदर, मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसे लगने लगा है अब तो कि परमेश्वर ही नहीं है। मैं 15 साल से विश्वासी हूँ, 20 साल से विश्वासी हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं कर रहा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपके लिए ही है, वो तो आपसे प्रेम करता है। He loves you, He is for you, but He expects certain things from you. Hallelujah. He expects obedience, just simple obedience. Obey the word of God. Obey whatever the word of God tells us. Hallelujah. और क्या क्या चीजों में हमें ओबे करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने दिया है और कहा है हमसे कि ये व्यक्ति का अनुकरण तुम करो। इन 1 पीटर, पहला पत्रस 2 और 21 में लिखा है कि ये चीज के लिए तुम बुलाए गए हो। फॉर दिस रीजन यू हैव बीन कॉल्ड, बिकॉज क्राइस्ट सफर्ड फॉर यू। कि मसीह यीशु आपके लिए उन्होंने परिश्रम उठाया, तकलीफ झेला, आप और उसके साथ ही साथ एक उदाहरण आपके लिए छोड़ा। हालेलुया। एक उदाहरण आपके लिए छोड़ा। कौन सा उदाहरण? आज्ञा पालन का उदाहरण। हालेलुया। आज्ञा पालन का उदाहरण कि जैसे मसीह यीशु ने अपने पिता का आज्ञा पालन किया, परमेश्वर चाहता है कि वैसे हम भी वो उदाहरण को देखकर हम भी आज्ञा पालन करें। बाइबल कहता है, बाइबल गवाही देता है, द बाइबल गिव्स अ टेस्टिमनी दैट क्राइस्ट जीसस वाज ओबीडिएंट अनटू द क्रॉस। हालेलुया। वो मरने दम तक आज्ञा पालन कर रहा था परमेश्वर का। हालेलुया। आज बहुत से बार हम दिन भर दिन में we fall short of obedience. That's why we lose our blessings. We don't see God's goodness. Hallelujah. Bible clearly says, Prophet Samuel ने clearly कहा, obedience is better than sacrifice. उसने लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर को बलिदान चाहिए? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से बेहतर है। हालेलुया। आज हम कितने लोग मसीह यीशु के जीवन को ठीक से जांच पा रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग हम मसीह यीशु के जीवन को देख पा रहे हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते? जब भी आप बाइबल पढ़े, आपको मसीह यीशु नजर आना चाहिए, उसका व्यवहार नजर आना चाहिए। हालेलुया। उसका वो प्रेम नजर आना चाहिए, उसका सहनशीलता नजर आना चाहिए, वो शांति नजर आना चाहिए। हालेलुया। और कितने लोग हम केवल वो पढ़ रहे हैं या फिर मेहनत भी कर रहे हैं कि हमारे पास भी वैसा जीवन हो। हालेलुया। यू नो व्हाट इज ओबीडियंस? मैंने कहा ओबीडियंस इज सबमिटिंग अंडर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड हाउ टू ओबे, हाउ टू वॉक इन दिस ओबीडियंस इज बाय सीइंग द लाइफ ऑफ जीसस। हाउ टू वॉक इन दिस ओबीडियंस, कैसे आज्ञा पालन में चलना है? यीशु मसीह का जीवन देखकर। बहुत से उदाहरण दिए बाइबल में। हालेलुया।
यीशु मसीह का व्यवहार, उन्होंने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। हालेलुया। 1 पीटर 2 वर्सेस 22 और 23 में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब उन्होंने ठुकराया यीशु मसीह को, when they hurled their insults at him, he did not retaliate, उन्होंने उल्टा नहीं बोला। when he suffered, he made no threat, जब वो सफरिंग झेल रहा था, जब वो झेल रहा था, कष्ट उठा रहा था आपके और हमारे पापों के लिए, तभी उसने थ्रेट नहीं दिया, यानी धमकी नहीं दी है। हालेलुया। यानी कुछ नुकसान ऐसे होने वाले हरकतें नहीं की। हालेलुया, आमीन। लेकिन लास्ट वर्स कहता है 1 पीटर 2:23 में, लास्ट वर्स, कि इंस्टेड उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया। दैट्स ओबीडियंस। हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन किया, परमेश्वर के हवाले कर दिया। हालेलुया, आमीन। आज हमारे पास भी समस्या है, आज हमारे पास भी कष्ट है, लेकिन कितने लोग आज्ञा पालन पूरा करने में मसीह यीशु का उदाहरण लेते हैं। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव अ डिजायर टू लिव अ लाइफ लाइक जीसस। आमीन। आप दुनिया भर में किसी का भी अनुकरण कर सकते हो। यू कैन इमिटेट एनी मैन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे वो व्यक्ति जैसा बनना है, वो कितना अच्छा है। हालेलुया। उसके पास बहुत से फॉलोअर्स हैं, मुझे उसके जैसा होना है। उसके पास बड़ा अच्छा बॉडी है, मुझे उसके जैसा होना है। हालेलुया, आमीन। वो बहुत फेमस है, मुझे वो व्यक्ति जैसा होना है। लेकिन कितने लोग इच्छा रखते हैं कि मुझे यीशु मसीह जैसा होना है, क्योंकि यीशु मसीह का पूरा जीवन आज्ञा पालन वाला जीवन था, इसीलिए परमेश्वर ने दाहिने हाथ पर बैठने का अधिकार उसे दिया। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों से ऊंचा नाम ऐसा रखा है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ अस desire to be like Jesus, because Bible says that for this reason you were called, ये ही कारण के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया, कि मसीह यीशु का उदाहरण को हम देखें और उसके अनुसार चले। हालेलुया। The best example of Jesus Christ, or the greatest example of Jesus Christ is obedience. Hallelujah, is obedience. Hallelujah. When challenges come, are you obeying to be patient like Jesus was patient? When people mock at you, are you obeying God's word by being peaceful and by praying for them, not retaliating as Jesus did not retaliate? Hallelujah. Praise the Lord. It is very difficult. It is very difficult to really have the life of Jesus. But if you understand, hallelujah, if you understand the same word you are reading, hallelujah, then God will bless you. Do not delay your blessings. आज मैं ये पेज पर इसीलिए आया हूं लोगों को कहने के लिए कि आपका ब्लेसिंग को आप आज्ञा पालन से दूर रहकर डिले करो नहीं। आज्ञा पालन ऐसे जीवन में जीकर आपका ब्लेसिंग आप जल्द पाते रहोगे। हर दिन आपके लिए आशीष का दिन रहेगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर की इच्छा यही है, God's plan is, God's desire is that for us every day should be a day of blessing. Every day there should be a miracle. Every day there should be a testimony. क्योंकि दाऊद ने ये बात को समझ लिया था, इसलिए उसने कहा भजन संहिता 23 और आखिरी अध्याय में कि उसकी भलाई जीवन के हर दिन मेरे संग रहेगी। हालेलुया। His goodness will follow me all the days. उसने नहीं कहा कि एक दिन मैं वो भलाई को देखूंगा, नहीं, उसने कहा भलाई जीवन के हर दिन मेरे पीछे चलेगी। हालेलुया, हर दिन, एवरी डे। हालेलुया, आमीन। आज कभी कभी क्या हो जाता है, हम एक दिन रुकते हैं जो दिन ब्लेसिंग करेगा, और वो दिन तक हम रोते हैं, हम कष्ट उठाते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, और फाइनली जब वो एक दिन आता है तब हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। और फिर समस्या में पड़ गए तो हम फिर हमारे जीवन में लग जाते हैं, गुस्सा भरा जीवन। हालेलुया। झगड़ा भरा जीवन, आज्ञाकारी नहीं होने वाला जीवन। हालेलुया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आज्ञा पालन देखना चाहता है। आपको पता है ये लॉकडाउन क्यों आया है? लॉकडाउन जैसा समय आपके और मेरे तक क्यों आया? Why did a situation like lockdown come to you and me? आपको पता है ऐसा ही लॉकडाउन नोआ के समय में भी हुआ था। हालेलुया।
नूह के समय में भी ऐसा ही लॉकडाउन हुआ था। और वो लॉकडाउन में क्या हुआ पता है? नूह और उसका परिवार नाव के अंदर था और बाहर से परमेश्वर ने वो नाव को बंद किया था। यानी नूह और उसका परिवार लॉक्ड थे अंदर, और उसका कड़ी बाहर से लगाया गया था, अंदर से तो बंद नहीं कर पाया नूह। परमेश्वर ने उन्हें अंदर रखा था। हालेलुया। और अंदर क्यों रखा था? अंदर क्या हो रहा था? हालेलुया। अंदर नोआ और उसके परिवार को परमेश्वर ने बहुत सारे टास्क्स दिए थे, बहुत सारे कार्य दिए थे, आज्ञा पालन करने वाले कार्य। वो क्या क्या कार्य थे? शायद एनिमल्स को चराना, उनका रखवाली करना, एक दूसरे को देखना, परिवार के साथ प्रेम से रहना, रोज प्रार्थना करना। हालेलुया। ये सब काम दिया था। और बाइबल कहती है कि नूह ने वो हर चीज किया जो परमेश्वर ने उसे बताया था। हालेलुया। इफ यू रीड जेनेसिस 6:22, उत्पत्ति 6 और 22 अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि नूह ने वो सब चीज का आज्ञा पालन किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। हालेलुया। आज ये लॉकडाउन में भी परमेश्वर हमारा तैयारी देख रहा है। हालेलुया। इन दिस लॉकडाउन परमेश्वर हमारा आज्ञा पालन वाला तैयारी देख रहा है कि कितना हम वो हर चीज करने के लिए तैयार है। उसके लिए प्रार्थना करने तैयार है क्या? एक दूसरे का देखभाल करने तैयार है क्या? Hallelujah. Are we ready to take care of one another? Love the family. Come together. Pray. Seek the Lord. Not gossip, not backbite, not fight with anybody, but just come in the presence of God and say, Lord, I am ready to do everything you tell me. Have we come into that place? Hallelujah. If you have come to that place, then God will bless you. Your preparation will be successful. If you have not come to that place, then you are delaying your blessing. Hallelujah. नोआ प्रिपरेशन, नोआ और उसका परिवार प्रिपरेशन के समय में था। लॉकडाउन के वक्त प्रिपरेशन चालू था अंदर। हालेलुया। कि कितना ये कुड़कुड़ाते हैं या कितना परमेश्वर जो भी कहता है वो करने के लिए तैयार है। नूह कह सकता था, अरे परमेश्वर क्या है, किधर रख दिया तूने मुझे? हालेलुया। बाहर क्या है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पता भी नहीं मैं किधर हूं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने एक बात समझ लिया था कि हर समय में परमेश्वर हमारे आज्ञा पालन को चखेगा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने, when God told Abraham sacrifice his only son, hallelujah, do you think God was looking at the sacrifice? अगर परमेश्वर सच्ची में बलिदान देखना चाहता था तो अब्राहम को अपने बच्चे को मार देने अनुमति देता था। हालेलुया। He would have allowed Abraham to kill his son if really God wanted to see sacrifice. God did not wanted to see sacrifice. God wanted to see the obedience. कि are you ready to do whatever I tell you? हालेलुया। आज बहुत से बार परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिन भर दिन में बातें करता है। क्या हम सच में वो आज्ञा पालन वाले स्थिति में आ गए हैं कि हम सबसे पहले सुने वो क्या कह रहा है और दूसरी बात करें, जो भी वो कह रहा है वो करने के लिए हम तैयार है कि नहीं? आज अपने आप से पूछो कि परमेश्वर कुछ जो भी मुझे कहे, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? Am I ready to do whatever the Lord says without thinking twice? Hallelujah. Praise the Lord. तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे परीक्षा जो आज्ञा पालन का लेता है। Hallelujah. God is taking the test of our obedience. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. जो भी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था वो अब्राहम ने वो सब किया और वो ऊपर पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। और जब उसने अपना हाथ बढ़ाया सैक्रिफाइस की ओर, हालेलुया, तब परमेश्वर ने उसका आज्ञा पालन को टेस्ट किया और कहा कि अब मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। नाउ आई नो हाउ मच यू लव मी। प्रेज द लॉर्ड। जॉन 14:21, यूहन्ना 14 और 21 में परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आज्ञा पालन करता है वो ही व्यक्ति मेरे से प्रेम कर सकता है, और जो मेरे से प्रेम करता है उससे मेरा पिता भी प्रेम करेगा, मैं भी प्रेम करूंगा और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट नहीं करता तब तक आप उसका चंगाई भरा सामर्थ को नहीं देख पाएंगे, आप उसका आशीष भरा हाथ को नहीं देख पाएंगे।
हालेलुया। उसके महान महान चिन्ह चमत्कार और कार्य को नहीं देख पाएंगे, यू विल नॉट सी ब्लेसिंग्स। हालेलुया। आज क्यों हम परमेश्वर को रियलिटी में नहीं देख पा रहे? क्यों हम परमेश्वर को उसके असली रूप में नहीं देख पा रहे? क्योंकि बाइबल कहता है वो सामर्थी है, उसने चिन्ह चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। बाइबल ये भी कहता है कि ही इज द सेम गॉड यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो आज भी उससे बढ़कर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे। We are not able to see the power of God. We are not able to see the goodness of God. We are not able to see the miracles of God. We are not able to see the blessings of God. Why? Because Jesus has not revealed himself in its originality to us. Why he has not revealed himself? Because there is no obedience. Hallelujah. वही यूहन्ना 14 और 21 में लिखा है, John 14:21. Those who obey are the ones who love me, and because they love me, and because they obey me, and because they love me, hallelujah, my Father will love them, and I will reveal myself to them. Hallelujah. क्योंकि वो मेरा आज्ञा पालन करते, क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। सच्चा प्रेम आज्ञा पालन में है। क्योंकि वो मेरा आज्ञा पालन करते और प्रेम करते, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को चंगाई देने वाले के रूप में प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को आशीष देने वाले के रूप में प्रकट करूंगा। मैं अपने आप को यहोवा जायरा इसके रूप में प्रकट करूंगा, जो उनका हर जरूरत को पूरा कर सकता है। मैं अपने आप को चमत्कार करने वाले के रूप में प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को सच में हर दिन परमेश्वर जो है वो असली रूप में देखना चाहते हैं? हालेलुया। How many of us really want to see God in its originality as a miracle worker, promise keeper, light in the darkness? Hallelujah. As the way maker. You need to come to the place of obedience. Hallelujah. Today are you willing to say, Lord, whatever you tell me, I will obey you. Hallelujah. आज्ञा पालन में कभी कभी things will not make sense. Abraham, at the age of 100, he had a son, and the Lord told him, sacrifice that son. So it should have made no sense to him. Lord, इतना प्रार्थना के बाद, इतना संघर्ष के बाद एक तो बेटा हो और उसे ही तू मुझे बोल रहा है कि इसे बलिदान चढ़ा दे। हालेलुया। लेकिन बहुत से बार मैं आपको बताना चाहता हूं, with instructions, God actually does not test the sacrifice, he tests the obedience. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर सैक्रिफाइस को टेस्ट करना था तो बच्चे को मरने देता परमेश्वर और फिर कहता कि अब मुझे पता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने देख लिया था और कहा कि मुझे पता है तू कितना प्रेम करता है, और तेरा सच्चा प्रेम तेरे आज्ञा पालन में मैंने देख लिया। हालेलुया। तेरे आज्ञा पालन में मैंने सच्चा प्रेम देख लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि the word of God tells us, love your neighbors. क्या हम सच में आज्ञा पालन करते हैं? बाइबल का वचन कहता है कि pray for those who persecute you. जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या हम सच में प्रार्थना करते हैं या हम भी उन्हें सताने की तरीके देखते हैं? हालेलुया। कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने भाई से प्रेम करो। क्या हम सच में अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं या उनकी निंदा करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय मत करो कि तुम्हारा भी किया जाएगा। आज क्या हम सच में ये वचन का आज्ञा पालन करते हैं या हम हर दिन हमारा न्याय करने में बिताते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है? हालेलुया। आपको पता है हम कितना बार दिन में आज्ञा पालन से कम गिरते हैं? How many times in a day we disobey? You know what is disobedience? Disobedience क्या है आपको पता है? Disobedience is like witchcraft, is like the sin of witchcraft. बाइबल क्लियरली कहता है ड्यूट्रोनॉमी में कि disobedience का मतलब, disobedience is as equal to the sin of witchcraft. हालेलुया। बाइबल क्लियरली कहता है। हालेलुया। तो आज हम कितने बार दिन में डिसओबे करते हैं, परमेश्वर का वचन पे ध्यान नहीं देते हैं, वचन क्या कहते हैं उसके अनुसार नहीं चलते हैं।
इसीलिए हम हमारे आशीष से कम गिर गए। लेकिन आज गुड न्यूज है, देयर इज अ गुड न्यूज। इफ यू आर रेडी टू कम बैक टू द लॉर्ड, इफ यू आर रेडी टू कम बैक टू द प्लेस ऑफ ओबीडियंस एंड से लॉर्ड, I disobeyed you, but change me from today. I want to be the person who will do whatever you say. I tell you, God will be ready to do whatever you didn't even say. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर जो कहता है वो करने के लिए तैयार हो, तो जो चीज आपने पूछा भी नहीं, आपने मांगा भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं, ऐसी चीज परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, What no eye has seen, no ear has heard, no mind has understood, that things God has in store for those that love him. Hallelujah. जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी मन ने नहीं सोचा, ऐसा कार्य परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जो उससे सच्चा प्रेम करते हैं। और सच्चा प्रेम किस में दिखता है? आज्ञा पालन में दिखता है। हालेलुया। आज्ञाकारी बनने में दिखता है। Hallelujah. Today, are you an obedient child of the Lord? Are you willing to be an obedient child of the Lord? Hallelujah. Amen. Genesis 5 और 22 में लिखा है कि एनॉक, क्योंकि इसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, इसीलिए वो परमेश्वर के संग संग चलने लगा। Hallelujah. Praise the Lord. व्यवस्था विवरण 28 और 1 और 2 में लिखा है कि जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है उन्हें परमेश्वर ऐसे आशीष देगा कि उनका नाम ऊंचा करेगा। Hallelujah. He will increase their name, make their name great. Hallelujah. Praise the Lord. आपका बढ़ोतरी से आप इसीलिए कम गिर जाते हो क्योंकि हम ओबे नहीं करते। आज कलीसिया बनकर हमें ओबीडियंस समझना है। हमें समझना है कि ओबीडियंस यानी क्या? ओबीडियंस यानी परमेश्वर के प्रति सच्चा प्यार। Obedience means the true love for God. You cannot disobey and say, Lord, I love you. You cannot hate your neighbor and say, Jesus, I love you. You cannot gossip about people and say, Lord Jesus, I love you. Hallelujah. Praise the Lord. You cannot fight with people and come and pray and say, Lord, I love you. No. God will not hear that. Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो, आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हो, लेकिन यदि आप में प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं। कौन से प्रेम के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? कौन सा प्रेम? हालेलुया। Which love God is talking about? The love, the true love He is talking about, which portrays obedience. True love is what has obedience in it. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरा आज्ञा पालन करोगे। If you really love me, you will keep my commandments. The question today, आज परमेश्वर कलीसिया से एक सवाल पूछ रहा है। One big question. Do you really love me? Hallelujah. Do you really love me? 3 बार पतरस को यह सवाल पूछा था कि क्या सच में प्रेम करते हैं? Hallelujah. 3 बार। Hallelujah. Praise the Lord. 3 बार पूछा था। Amen. और किधर ना किधर आज्ञा पालन में हम सभी लोग कम गिर रहे हैं। परमेश्वर रोज हमें पूछ रहा है, डू यू रियली लव मी? कितने लोग सच में वो वाणी को सुन पा रहे हैं कि परमेश्वर पूछ रहा है, डू यू रियली लव मी? आपको पता है परमेश्वर उत्तर में नहीं देखना चाहता है कि हम कितना प्रेम करते हैं, वो एक्शन में देखना चाहता है कि हम कितना उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। शायद परमेश्वर पतरस से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और वो मुंह से कह रहा था, मैं करता हूं, सच में प्रेम करता हूं, सच में करता हूं, तुझे पता है मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रश्न के पीछे एक एक्शन का एक्सपेक्टेशन था। हालेलुया। वर्ड्स का नहीं, एक्शन का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हीथन्स जैसे मत बनो जो बातों में अपने आप को लगाते हैं। डोंट बी लाइक द हीथन्स, दोज हु गिव देमसेल्व्स इन टॉक्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका एक्शन में आप बताओ, आपका आज्ञा पालन करने वाला ऐसा जीवन में आप मुझे बताओ कितना प्रेम करते हो। इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। भजन संहिता 119 और 60वां अध्याय में साम 119 वर्स 16, ये देखो, ये बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्चर है। दिस इज अ पावरफुल स्क्रिप्चर, साम 119 वर्स 60। द सामिस्ट सेज, भजनकार इसमें कहता है कि आई हेसन एंड डू नॉट डिले टू ओबे, यानी मैं क्विक रहता हूं, मैं तुरंत आज्ञा पालन के पीछे रहता हूं। आज्ञा पालन का जब बात आता है तो मैं तुरंत हो जाता हूं और मैं उसे डिले नहीं करता हूं। हालेलुया। डिलेइंग टू ओबे इज डिलेइंग योर ब्लेसिंग। हालेलुया। अभी जितने बार हम डिसओबे करते उतना दूर हमारा ब्लेसिंग दूर हो जाता है, उतना दूर हमारा ब्लेसिंग चला जाता है। सपोज अगर परमेश्वर आपको इस महीने के 20 तारीख को, हालेलुया, दिस मंथ 20 तारीख को अगर परमेश्वर चाहता था कि आपको ब्लेस करे और आपने डिसओबे कर दिया, तो आपका ब्लेसिंग ये महीना का 20 तारीख से 3 महीने बाद बढ़ जाता है, 3 महीने बाद तक चले जाता है, और हम डिसओबे करते जाते और वो उससे भी फिर दूर 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 चले जाता है। हालेलुया। अब प्रश्न ये है कि क्या हम वो जितना दूर वो ब्लेसिंग पहुंच गया वहां से हम उसे पीछे लेके आ सकते हैं? हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन इज, द ब्लेसिंग दैट हैज बीन डिलेड, कैन वी ब्रिंग इट बैक? द आंसर इज, यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, बट यू कैन रन टू इट। हालेलुया। उत्तर यह है कि आप वो ब्लेसिंग को पीछे नहीं लेके आ सकते हो खींचकर, लेकिन आप उस तक भाग सकते हो। हालेलुया। तो कैसे भागना है? अब पश्चाताप करना है और कहना है, परमेश्वर अब मैं तैयार हूं आपके लिए कुछ भी करने, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू। तो इससे क्या हो जाता है, जब आप आज्ञा पालन करने लग जाते हैं तो आपका रफ्तार ब्लेसिंग के तरफ करीब हो जाता है। यू स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू योर ब्लेसिंग, वेयर योर ब्लेसिंग इज नाउ। You start running towards it. Hallelujah. Amen. ये Christian life is all about running. Hallelujah. अगर हम अपेक्षा करते कि वो ब्लेसिंग पीछे आ जाए, Amen, तो ये तो आलसीपना हो गया. That becomes laziness. God will not allow such things, but God will want you to run. Paul understood this. इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राइज के लिए, You see that? I run for my prize. मेरा ब्लेसिंग जो है, मेरा प्राइज जो है, मेरा तोहफा जो है, उसके लिए मैं दौड़ लगाता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ लगाता हूं। हालेलुया। और उसने कैसा दौड़ लगाया? हाउ डिड ही रन? हालेलुया। हाउ डिड ही रन द रेस? क्या अपना फिजिकल रूप में वो भाग रहा था? नो। हालेलुया। वो आज्ञा पालन में बढ़ने लगा। वो हर दिन आज्ञा पालन करने लगा, परमेश्वर का जो वचन कहता है, हालेलुया, वो करने लगा। उसके वजह से क्या हुआ? ओबीडियंस मीन्स रनिंग इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। ओबीडियंस इज रनिंग इन द पाथ ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ओबीडियंस इज व्हाट गिव्स स्पीड टू योर लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो ये आज्ञा पालन का जीवन में जीकर पौलुस अपने ब्लेसिंग की ओर भाग रहा था। हालेलुया। आमेन। अगर आपने आपका ब्लेसिंग डिले करवा दिया है तो आज परमेश्वर आपको एक सीक्रेट देना चाहता है, वो ओबीडियंस है। वो सीक्रेट बलिदान नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है मैं अगर बहुत सारे पैसे दे दूं चर्च में, 1-1 लाख रुपया मैं अगर चर्च में दे दूं तो परमेश्वर मुझे मेरे पास देखेगा और मुझे जो चाहिए वो देगा। हालेलुया। इसीलिए जब ब्लेसिंग नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैंने ये किया था तेरे लिए और तुम मुझे ब्लेस नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इज नॉट वेयर गॉड डिलाइट्स। Sacrifice was at a time instruction from the Lord, but in what God delights is obedience. इसीलिए प्रॉफेट सैमुएल ने कहा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि परमेश्वर का हृदय बलिदान में है? उसका हृदय आज्ञा पालन में है। And obedience gives speed to your Christian life, to advance towards the goodness of God, to run towards the blessing, what God has for you. Hallelujah. And obedience is nothing but the true love for God. Obedience is the true love for God and the true love that God is looking for today.
Hallelujah. The true love is not in words. The true love for God is not in words, with you saying, Lord, I love you. The true love is not by the songs you sing. Hallelujah. आप गाने में कुछ भी गा सकते हो, आप एक गीत गा सकते हो, लेकिन दूसरा कुछ कार्य कर सकते हो. इसलिए परमेश्वर अपने शब्दों में आज्ञा पालन नहीं देखना चाहता है, हमारे चरित्र में. If our life is exactly like what the word says, there is where God tests your obedience, and that obedience is the true love for God. Hallelujah. Jesus did what the Father told him. He walked according to the word. बाइबल कहती है कि उसने वचन के अनुसार चला. हालेलुया. यानी वचन के अनुसार आज्ञा पालन में उसने अपना जीवन को भी वैसा बसाया. इसीलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था. हालेलुया. God took delight in Jesus. Hallelujah. When God takes delight in you, that means your obedience, your true love has touched the heart of your Father. हालेलुया. आज हम बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को टच करे, हमारे कार्यों में अपने स्पर्श दे, हमारे बिजनेस को ब्लेस करे, हम इधर ब्लेस करे, उधर ब्लेस करे, घर को ब्लेस करे. Hallelujah. We want God to touch our family, our this, our that. But how many of us have touched the heart of God? आज कितने लोग, हम में से कितने लोग वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के हृदय को छुआ है. हालेलुया. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छुए, हमारे पैसे को छुए, लेकिन कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छुआ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 12 ट्राइब्स थे पुराने नियम में, 12 ट्राइब्स, लेकिन उसमें से केवल एक ट्राइब था जिन्होंने परमेश्वर के हृदय को छू लिया था. Only one tribe touched the heart of God. Hallelujah. और वो एक ट्राइब की वजह से परमेश्वर ने लैंड को ब्लेस किया. Hallelujah. अब those were the tribes of the Levites. वो लेवी लोग थे. Hallelujah. जो परमेश्वर के हृदय को जांच रहे थे. They were searching the heart of God and asking Lord what your heart needs. Hallelujah. बाकी के सब लोग परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर ये दे, परमेश्वर वो दे, परमेश्वर ये करे, परमेश्वर वो करे, लेकिन एक ऐसा गोत्र परमेश्वर के हृदय को जांच कर पूछ रहा था कि परमेश्वर आपका हृदय क्या कहता है मेरे प्रति. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज कितने लोग हैं जो सच में परमेश्वर को रोज पूछते हैं कि परमेश्वर आपका हृदय मेरे लिए क्या कहता है. हालेलुया. ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अरे परमेश्वर तो कहता है कि तुम पहला राज्य को खोजो, मेरे धार्मिकता को खोजो, आज्ञा पालन के ऐसे जीवन में आओ, ये सब तो तुम्हारे पीछे आएगा. हालेलुया. तुम पूछने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें उससे बढ़कर दूंगा, परमेश्वर कहता है. हालेलुया. लेकिन क्या आप वो कर रहे हो जो मैं चाहता हूं? हालेलुया. आर यू डूइंग दैट वन थिंग दैट आई एक्सपेक्ट? यीशु मसीह ने वो चीज पूरा किया. ओबीडियंस. बचपन से लेकर टिल द क्रॉस ओबीडियंस. हालेलुया. ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस. ये पूरे हफ्ता में भर में ओबीडियंस के बारे में बता रहा हूं, ओबीडियंस के बारे में सिखा रहा हूं. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं आज्ञा पालन देखना चाहता हूं अपने लोगों से, और जो समय मैं आज्ञा पालन देखूंगा वो समय में ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जिसके बारे में आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मन ने कभी नहीं सोचा. प्रेज द लॉर्ड. ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है, आपके परिवार के लिए करने तैयार है. बट आर यू विलिंग टू कम टू दैट प्लेस ऑफ ओबीडियंस? हालेलुया. बाइबल कहती है कि जितना हो सके आपसे सभी के साथ शांति में रहो. क्या आप सच में लोगों के साथ शांति में रहते हैं? आपका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है? हालेलुया. परमेश्वर कहता है कि लव योर नेबर. कितना लोग अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? हालेलुया. या पड़ोसी ने दरवाजा खोल दिया तो हमारा दरवाजा लॉक कर देते हैं. हालेलुया. पड़ोसी को कुछ जरूरत है तो कितने लोग पहले आगे जाते हैं देने के लिए, कुछ देने के लिए. पड़ोसी से कितने लोग पूछते हैं. या आप रुकते हैं पड़ोसी क्रिश्चियन होने के लिए कि अगर वो क्रिश्चियन है तो ही मैं ठोकूंगा और प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
अपना भाई जरूरत में हो तो कितने लोग आगे जाकर मदद करते हैं, या कितने लोग पूछताछ करते हैं, कितने लोग अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपको ठोका होगा, जिन्होंने आपको गाली दी होगी, या रोज वो एक दिन के लिए रुकते हैं जहां पर आप उन्हें सबक सिखा सके। हालेलुया। परमेश्वर आज आज्ञा पालन देखना चाहता है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन को समझता है वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को भी अपनाता है, और वही व्यक्ति को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति के सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति चमत्कार से भरा हुआ जीवन जीता है, वो व्यक्ति के जीवन के हर दिन भर उसकी करुणा और भलाई उसके पीछे रहती है। हालेलुया। Only the person who has experienced God, to whom God has revealed, is the person who will experience God's goodness all the days. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. आज परमेश्वर आज्ञा पालन के विषय में कलीसिया से बातें कर रहे हैं। और पता है आपको क्या, परमेश्वर ये भी कहता है कि वे लोग सुने जिनके कान खुले हैं कि आत्मा कलीसिया से क्या बातें कर रही है। वही लोग सुने। हालेलुया। बहुत से लोग ये इस विषय को लेकर बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत से लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। नहीं, मुझे पता है, हमें पता है क्या करना है, तुम हमें मत सिखाओ। हालेलुया। बहुत से लोगों के कान बंद हो रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। जो व्यक्ति वचन को नाकारता है वो व्यक्ति अपने कान को बंद करवाता है। और ध्यान दे, एक बार कान बंद हो गया तो बंद हो गया, बंद कान खुलता नहीं बार बार। हालेलुया। बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ईयर ड्रम लगाना पड़ता है, ईयरिंग मशीन लगाना पड़ता है, और बहुत से बार वो सब लगाने के बाद भी कभी कभी कान काम नहीं करता। लेकिन ये बेहतर है कि ऐसे दर्दनाक समय आने से पहले आप सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। परमेश्वर कहते हैं अपने आप को नम्र करो। क्या हम आज्ञा पालन कर रहे हैं अपने आप को नम्र करने, या फिर हम अपने अपने अचीवमेंट्स को लेकर बड़ाई कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप को कुछ तो समझकर इधर उधर जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का आज्ञा पालन देखो, हर वचन को उसने पूरा किया, हर वचन को उसने पूरा किया। शत्रु से प्रेम किया, दुश्मन के लिए प्रार्थना किया, अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। सच्चा प्रेम बताया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर आज्ञा पालन देखना चाहता है। जैसे नूह के विषय में परमेश्वर ने कहा कि नूह ने वो सब किया जो मैंने उसे कहा था। आपको पता है वो वैसा ही परमेश्वर ने हमसे भी कहना चाहिए। मेरा यही प्रार्थना है कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहूं तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे कहे कि एजिकियल ने वो सब किया जो मैंने उसे कहा। नूह के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। हालेलुया। आपको पता है सच्चा गवाही वो गवाही होता है जहां पर परमेश्वर आपके विषय में बात करे, क्योंकि हम तो परमेश्वर के विषय में कुछ भी बात कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेकर हम कुछ भी कह सकते हैं, जो चीज नहीं हुआ वो भी हम कह सकते हैं। लेकिन कितने लोग के पास वो गारंटी है कि परमेश्वर भी आपके विषय में बात करेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको तकलीफ होती है मसीह जीवन में तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है जो आपको वो चीज प्रकट करेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बसा देगा जिससे आप प्रेम कर सकते हो। वो परमेश्वर का चरित्र आप में डाल देगा जिससे आप यीशु के जैसा जी सकते हो। पहला शमूएल 10 और 6 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तुम्हारा रूपांतर, तुम्हारा परिवर्तन एक नया मनुष्य में हो जाएगा। हालेलुया। वो नया मनुष्य कौन सा मनुष्य पता है? वो आज्ञा पालन करने वाला मनुष्य है, नया मनुष्य। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
आज परमेश्वर हमसे आज्ञा पालन एक्सपेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि ये कैसे हो, कैसे करे, क्या करे, मुझे तो नहीं जमता ये सब, तो हर दिन पवित्र आत्मा को मांगो, हर दिन पवित्र आत्मा को आपके करीब रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहो कि पवित्र आत्मा ही मेरे लिए मेरा एसेट है, मेरा धन है, जिसके कारण मैं परमेश्वर के करीब पहुंच सकता हूं, जिसके कारण मुझे परमेश्वर रियलिटी में देखने मिलेगा, जिसके कारण परमेश्वर का कार्य मेरे लिए रियल रहेगा, जिसके कारण परमेश्वर का अच्छाई, भलाई, करुणा मेरे लिए रियल रहेगा। हर दिन मैं उसका आनंद मना सकूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। गॉड लव्स यू सो मच। हालेलुया। वो आपके लिए आज भी आशीष देने के लिए काबिल है। हालेलुया। लेकिन वो आज्ञा पालन देखना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू सी ओबीडियंस। आमेन। जब वचन कहता है कि नूह ने वो सब चीज किया जो परमेश्वर ने कहा, दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि ही प्रिसाइसली डिड एवरीथिंग, यानी छोटे से छोटे बात को देखकर उसने आज्ञा पालन किया, वो सब चीज जो परमेश्वर ने उसे कहा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओबीडियंस इज द की फॉर प्रिपरेशन। आमेन। और प्रिपरेशन के, इफ देयर इज नो प्रिपरेशन देयर इज नो सेलिब्रेशन। लॉकडाउन तक क्या चल रहा था पता है? नूह और उसके परिवार का प्रिपरेशन चल रहा था। नाव के अंदर भी प्रिपरेशन चल रहा था। प्रेम का प्रिपरेशन, आज्ञा पालन का प्रिपरेशन, एक दूसरे का सेवा करने का प्रिपरेशन। हालेलुया। और वो प्रिपरेशन के बाद क्या हुआ पता है? सेलिब्रेशन हुआ, आनंद का माहौल हुआ। लॉकडाउन के बाद आपको पता है ये लॉकडाउन होने के बाद क्या होने वाला है? सेलिब्रेशन होने वाला है। सब परमेश्वर के जन जिन्होंने अच्छा से प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने आज्ञा पालन के द्वारा प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर को सच्चा प्रेम बताया है, वो हर व्यक्ति परमेश्वर के अच्छाई का आनंद उठाने वाला है, सेलिब्रेशन को देखने वाला है। हालेलुया। और हम अब सेलिब्रेशन के करीब जा रहे हैं। हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। हर कलीसिया सेलिब्रेट करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे समय के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलने वाला हूं। अद्भुत कार्य होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे। स्वर्ग और धरती हालेलुया का गीत गाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर, सबसे अच्छी बात यह है कि उसका भाग में परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हम मिलकर रहे, हम मिलकर उसका भागीदार बने। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। ग्रेट थिंग्स गॉड हैज इन स्टोर फॉर दोज दैट लव हिम, those that love him, those that obey. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So this moment I just want to pray for people. हमारे पास 5 मिनट है और इस वक्त मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपके पास प्रार्थना विनती है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको अपने हृदय से परमेश्वर का ये जो वचन आपके पास लेके आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आज्ञा पालन को समझे और हर दिन परमेश्वर से यही कहे कि परमेश्वर मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि मैं वो हर चीज करूं जो तू मुझसे अपेक्षा करता है। मे आई डू ऑल दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। हालेलुया। ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो मैं कहूं कि ये नहीं कर सकता। और याद रखें कि आज्ञा पालन हमेशा हार्ड चीज होता है। इट इज नॉट द इजी थिंग। आज्ञा पालन सबसे हार्ड चीज होता है, टफ चीज रहता है। हालेलुया। उसमें लोग आपका मजाक भी उड़ा देंगे, निंदा भी करेंगे, लेकिन आपको करते रहना है, आज्ञा पालन करते रहना है। जब नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू आर्क बना, नाव बनाने के लिए कहा, तो बहुत समय लगे, 120 साल लगे। कितने लोग उसका मजाक उड़ाते रहेंगे कि ये क्या बोल रहा है, फ्लड आने वाला है, किसका सुन के कर रहा है। लेकिन नूह को पता था कि मैं मेरे परमेश्वर का सुन रहा हूं। लोग ने मजाक उड़ाया रहेगा, लोगों ने कुछ भी कहा होगा, लेकिन वो करता गया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। वो आज्ञा पालन नाव बनने तक भी कर रहा था, नाव के अंदर भी रहकर वो आज्ञा पालन कर रहा था। लॉकडाउन के पहले तक भी अगर हम आज्ञा पालन कर रहे थे, लॉकडाउन के वक्त भी परमेश्वर आज्ञा पालन का परीक्षा ले रहा है। यदि इसमें भी हम पास होने के लिए तैयार है तो सेलिब्रेशन का भागीदार हम बनेंगे। हालेलुया। जो धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर से कहा, मैं क्या करूं अनंत काल का जीवन प्राप्त करने? परमेश्वर ने कहा, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर।
उसने कहा ये तो मैं करता हूं, और क्या करूं? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा एक टफ चीज उसे दे दिया, टफ चीज, जिसके वजह से बाइबल कहती है कि वो धनवान व्यक्ति नाराज होकर चले गए। हालेलुया। ही बिकेम सैड एंड ही वेंट ऑफ। हालेलुया। आज्ञा पालन वो टफ चीज करना है। ओबीडियंस इज नॉट डूइंग द थिंग्स दैट एवरीबडी डज, नो। ओबीडियंस इज डूइंग द थिंग्स दैट इज नॉट कॉमनली डन। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने किया, ओबीडियंस था। नो ने जो किया, दैट वाज ओबीडियंस। जीसस ने जो किया अंत तक, क्रूस तक, दैट वाज ओबीडियंस। ये सब ओबीडियंस में ये ओबीडियंस आसान नहीं है। इसमें संघर्ष आएगा, इसमें लोग निंदा करेंगे, इसमें तकलीफ आएगा, लेकिन उसमें से भी अगर आप कहने के लिए तैयार है परमेश्वर आपके लिए कुछ भी, दैट टाइम परमेश्वर कहेगा कि अब मुझे पता है आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। आपके आज्ञा पालन ने, संघर्ष में भी आज्ञा पालन, तकलीफ में भी आज्ञा पालन ने बता दिया कि आपका प्रेम मेरे प्रति कितना है। एंड बिकॉज यू लव मी, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, आई विल डू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फॉर यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So whenever challenges come, situations come, don't stop obeying God. Obedience should be like, no matter what, I will hold on to God. That should be your status of obedience. Hallelujah, praise the Lord. Amen. बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं उन सभी से कहता हूं कि अरे भाई, मरने का जब समय आएगा तभी कोई भी सामने नहीं रहेगा। जीना सीखो परमेश्वर की, आज्ञा पालन ऐसे जीवन में जीना सीखो। मरने की तो बात दूर की है, पहले जीना तो सीखो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट अस टू डाई, ही एक्सपेक्ट्स अस टू लिव फॉर हिम। हालेलुया, ही एक्सपेक्ट्स अस टू लिव फॉर हिम। प्रेज द लॉर्ड। लेट अस प्रे दिस मोमेंट। लॉर्ड, आई ब्लेस ऑल द पीपल हु आर वाचिंग मी। परमेश्वर, मैं आपके लोगों को ब्लेस करता हूं जो भी देख रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि उन सभी को तू आज्ञा पालन वाला हृदय दे, आज्ञा पालन वाला जीवन दे, ताकि परमेश्वर जैसे मसीह यीशु का जीवन था वैसे ही उन सभी का जीवन भी रहे। और जैसे मसीह यीशु ने वो परमेश्वर के ओर से, आपके ओर से वो गवाही को सुना जिसमें आपने कहा कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। होने दे परमेश्वर कि आपके लोग भी वो गवाही को हासिल कर पाए, जहां पर आप कह सके कि ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। आई प्रे लॉर्ड, नो मैटर द सिचुएशन, नो मैटर द चैलेंजेस, हेल्प ईच वन टू होल्ड ऑन टू ओबीडियंस, बिकॉज देयर इज नो ग्रेटर लव दैट वी कैन शो फॉर यू, दैट इज इन ओबीडियंस। No greater love apart from obedience is what we can show. Lord, I pray that you would help everyone to walk in obedience, to live a lifestyle of obedience, and thus love you in true sense. Lord, we understand we cannot love you if we do not obey, because your word says if you obey me, you is where you will love me. If you love me, you will keep my commandments. If you love me, you can obey me. Hallelujah. And Lord, I pray that you would help every person to walk in obedience and thus prepare well in their life, because we know there is a time of celebration coming. Let all your children never fall short of that moments of celebration. Help each one to enjoy that celebration in the name of Jesus. Help each one to enjoy that celebration in the name of Jesus. Lord, all the people watching us, Lord, if they need a healing, grant them that healing. And Lord, if there is a financial situation in their life, release the miracle, God. In the name of Jesus, if your people are praying for breakthrough, release that breakthrough, God. In the name of Jesus, whatever your people are crying for right now, I pray that you would grant them your goodness. You would show them your reality in the name of Jesus. Lord, you are a great God and there is none like you. Help each of your children to experience your greatness. And we know that we cannot experience it unless we don't obey. But even as each one of us take a decision to obey, Lord, we pray from this day forth, help us to walk in your goodness. Help us to experience your greatness. Help us to experience your miracles, your supernatural miracles, the impossible becoming possible in the name of Jesus. Bless your people. Heal them.
strengthen them, deliver them, provide for them in the name of Jesus. And help each one to have millions of reasons to celebrate the goodness of God. We give you the glory and the honor and the praise. We bless HE Foundation Ministry. We bless our dear brother Marcus and his dad and his family, that this ministry will flourish in the name of Jesus. Ministry will flourish, O God, in Jesus' name. In the days to come, this ministry will expand. This ministry will have its production house. This ministry will produce songs in the name of Jesus. In the days to come, this ministry will have a recording station in the name of Jesus. This ministry will have its own media ministry in the name of Jesus. Father, we bless this ministry and we pray that you will provide every need, and this ministry will keep climbing higher and higher and higher in the name of Jesus. And new people will be added, new team will be added in the mighty name of Jesus Christ. We give you the glory. Bless all the people watching us. Their life will never be the same. We give you the glory and the honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless you all. Don't forget to tell God, how much you love Him every day by obeying what He says. Amen. Every day must be the day you tell Him, Lord, how much I love you. But you cannot mean what you say unless you obey. So walk in obedience and enjoy the blessings of the Lord all the days of your life. Remember, obedience is doing the hard thing. Be ready to do anything that the Lord instructs you. Amen. Be ready to do, and the Lord will bless you. And I pray that God will bless this ministry, and also the next service, the Lord will bless and use the man of God mightily. So God bless you all. Love you all. Thank you so much, Brother Marcus, for giving me this opportunity. I'm very humbled to come in your page, and may God bless you.